ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ میر وائز عمر فاروق 4 سال بعد نظر بندی سے رہا۔ سری نگر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کی، مصلیوں سے بھری پڑی مسجد میں جذباتی مناظر۔ پارلیمنٹ میں بی جے پی لیڈر رمیش بدھوری کے نازیبہ بیان پر جموں کشمیر کے لیڈروں کا رد عمل۔ بی جے پی لیڈر کے بیان کی سخت مذمت۔ ڈوڈا پولیس نے 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے خلاف کیا مقدمہ درج۔ پبلک سیفٹی اینڈ پی ایس ایکٹ کے تحت درج کیا گیا معاملہ۔ اور ڈوڈا ضلع ہیڈ کوارٹر پر کاستی گڑھ کی ڈی ڈی سی ممبر کے ہمراہ کاستی گڑھ بلاک کے عوام نے دیا دھرنا، روڈ کا کام جلد شروع کرنے کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کی 4 سالہ نظر بندی بالآخر ختم کر دی گئی، جس کے بعد میر وائز عمر فاروق نے 4 سالہ وقفے کے بعد آج سری نگر کے تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا اور امامت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کی 4 سالہ نظر بندی بالآخر ختم کر دی گئی، جس کے بعد میر وائز عمر فاروق نے 4 سالہ وقفے کے بعد آج سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا اور امامت کی۔ دفعہ 370 کی تنسیخ کے تناظر میں نظر بند کیے جانے کے 4 سال بعد حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بندی سے رہا کر دیا گیا۔ آج جمعۃ المبارک کے اس عظمت والے مہینے میں تقریباً 4.25 سال بعد 212 جمعہ مکمل ہونے کے بعد آپ حضرات سے بالمشافہہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ سب اس حقیقت سے واقف ہیں اور آپ اس کے عینی شاہد ہیں کہ 4 اگست 2019 سے مجھے بدستور اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور تب سے آج تک انتظامیہ نے مجھے گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود کہ تمام طبقہ فکر نے مطالبہ کیا، بار بار مطالبہ کیا کہ مجھے رہا کیا جائے، بالآخر جب مجبوراً ہمیں عدلیہ تک معاملہ پہنچانا پڑا تو کل بروز جمعرات پولیس کے کچھ سینئر اہلکار مجھ سے ملنے آئے اور مطلع کیا کہ انتظامیہ نے آپ کی نظر بندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو رہا کیا جا رہا ہے اور کل آپ کو جامع مسجد جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی مرضی سے آج 4 سال سے زائد عرصے کے بعد یہ ممکن ہو سکا ہے کہ جامع مسجد کے اس عظیم متبرک اور تاریخی عبادت گاہ میں آپ کے درمیان آج حاضر ہوں۔ میرے عزیزوں، اس وقت جو جذبات میرے اندر موجود ہیں وہ الفاظ میں ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرے ہم وطنوں، گھر میں نظر بند ہونے اور مشکل ترین حالات کے باوجود 2010 ہمیں کبھی علیحدگی پسند کہا گیا، کبھی ملک دشمن کہا گیا، کبھی امن دشمن قرار دیا گیا اور نہ معلوم ہمیں کیا کیا قرار دیا گیا۔ ادھر الطاف بخاری نے کہا کہ میں تاریخی جامع مسجد میں میر وائز عمر فاروق کو نماز جمعہ کی امامت کی اجازت دینے کے فیصلے کے لیے مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ جی اور ایل جی منوج سنہا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے میر وائز صاحب معاشرے کو ایک بہتر اور پرامن کل کے لیے مثبت انداز میں ڈھالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
वैसे ही जुमा हम में बड़ा अजीम दिन माना जाता है हफ्ते के दिनों में से। वो अच्छी न्यूज़ सुबह सुबह आई है। मीरवाइज साहब आज जुमा के प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो अल्लाह का ही शुक्र किया जाता है। दूसरा, आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड थैंक्स टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी कि उन्होंने, कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है। मुझे उम्मीद है मीरवाइज साहब के जो शायकीन हैं, जो एक अरसे से, लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सब का भी ख्वाब पूरा होगा। हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके, आज तो नहीं जाएंगे वहाँ सुनने के लिए। जो अमन की फ़िज़ा यहाँ कायम हुई है, मुझे उम्मीद है कि मीरवाइज साहब उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। मैं आपको बताऊंगा, हमारा तो काम है हर एक के लिए। अपनी पार्टी का वजूद ही इसलिए आया 2020 में, ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का उजाला करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्चाई से बाखबर करें। बहुत कड़वी बातें सुनी, बहुत तीखी बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज लोग समझते हैं अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी सच कहती थी और वही सच है। और उसी सच की एक कड़ी ये है कि आज मीरवाइज साहब रिलीज़ हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज़ किया ना। हम तो हमेशा कहते थे कोई और नहीं कर सकेगा। मैं कभी किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ। हम सब एक सोच के साथ, यहाँ हमारे लोगों का एक सोच था। प्रैक्टिकली शायद वो हमारे लीडरों ने कुछ ख्वाब दिखाए थे जिनकी ताबीर कभी हो नहीं सकी। तो जुमा का दिन है, वैसे ही जुमा हम में बड़ा उधर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर अशफाक जब्बार ने मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल के वक्फे के बाद श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त देने के हुकूमती फ़ैसले की सताइश की। हुई कि जब सुना कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब की नज़रबंदी ख़त्म हो गई और वो हमारी कदीम जामिया मस्जिद शरीफ में आज जुमा का खुतबा देने वाले हैं, और हम इसका खैर मकदम करते और उसका खुशी महसूस करते हैं। हम आज के दिन ये भी गुजारिश करते और अपील करते और हमारा पुरजोर एक इल्तिमास भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या बाकी LG साहब से भी कि वो जो इंजीनियर रशीद साहब जो एक अभी काफ़ी देर से जेल में बंद है, उनकी भी नज़रसानी की जाए उनके केस पे। और जो लोग जिनका कोई हीनियस क्राइम नहीं है, पहली बार जिन बच्चों से कोई गलती सरजद हुई हो, तो उनके केसों में भी रियायत बरती जाए और उनको एक मौका फिर से दिया जाए। और ख़ुसूसन जो और भी जो बच्चे हमारे कई बाहर के जेलों में हैं, उनको भी यहाँ जम्मू कश्मीर में मुंतकिल किया जाए, ताकि यहाँ जो इस वक्त काफ़ी गरीब लोग हैं, काफ़ी उनके पेरेंट्स से सालों अपने लफ्ते जिगरू से मिल नहीं पाते हैं। तो मेरी आज के दिन ये गुजारिश होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत जो यहाँ पे जो एक मौका इन लोगों को मिलना चाहिए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है या जो ज़्यादा जिनसे गलतियाँ नहीं हुई, फर्स्ट टाइम कोई गलती हुई है, उनसे नज़रसानी की जाए। भारत की पार्लिमानी तारीख में शर्मसार करने वाला वाक़या गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त पेश आया जब भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लिमान रमेश बधूरी ने रियासत उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले रुकन पार्लिमान दानिश अली के खिलाफ मुल्ला जैसे जारहाना और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने दानिश अली को मुस्लिम दहशतगर्द, मुस्लिम उग्रवादी मुल्ला कहा। रमेश बधूरी ने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो हम टीवी पर कह भी नहीं सकते। रमेश बधूरी की इस हरकत पर हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पार्लियामान के मुस्लिम मुखालिफ तबसरे पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस नफरत अंगेज़ MP की ज़बान कितनी आसानी से मोहतरम से फिसल जाती है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को अब आसान और आम बना दिया गया है। इससे कबल ऐसा माजी में कभी नहीं देखा गया। उमर अब्दुल्ला का मज़ीद कहना था कि वह मुसलमान जो बीजेपी को अपनी पार्टी के तौर पर पहचानते हैं, नफ़रत की सतह के साथ साथ कैसे रह सकते हैं।
ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی کی دختر اور ان کی میڈیا مشیر نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے بی جے پی کے سابق وزراء ہرش وردھن اور آر ایس پرساد کے قہقہے پر انہوں نے سوال اٹھایا۔ ڈوڈا پولیس نے 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے خلاف پبلک سیفٹی اینڈ پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ڈوڈا پولیس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے نام سجاد احمد بٹ ولد غلام قادر بٹ ساکنہ وانڈا بیلی ڈوڈا اور دوسرے مزمل رفیق ولد محمد رفیق گنائی ساکنہ سلطان پورہ بھدرواہ ضلع ڈوڈا کے خلاف پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پریونشن آف این ڈی پی ایس منشیات کی غیر قانونی سمگلنگ میں ان کی سرگرم شمولیت اور ڈویژنل کمشنر جموں کے حکم کے تحت ڈسٹرکٹ جیل بھدرواہ میں انہیں بند کیا گیا ہے۔ مجرموں کی سرگرمیاں انتہائی نقصان دہ ہیں اور سماج کے لیے سنگین خطرہ ہیں، جو کہ پولیس اسٹیشن بھدرواہ اور ڈوڈا میں ان کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں ملوث ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سجاد احمد بٹ کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ ایف آئی آر نمبر 159/2021 اور ایف آئی آر نمبر 2023-153 تھانہ ڈوڈا میں درج کی گئی ہے۔ اس طرح مزمل رفیق کے خلاف این ڈی پی سی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ ایف آئی آر نمبر 166/2019 اور ایف آئی آر نمبر 60/2023 تھانہ بھدرواہ میں درج کیا گیا۔ عادی مجرم ہونے والے دونوں افراد مقامی نوجوانوں کے لیے ایک سنگین خطرہ تھے اور پی ایس اے کے تحت ان کی گرفتاری یقینی طور پر مجرموں اور منشیات کے اسمگلروں کے لیے روک تھام کا کام کرے گی اور علاقے کے بے گناہ نوجوانوں کی قیمتی جانیں بھی بچائے گی۔ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے اس سال ڈوڈا پولیس نے 26 مجرموں کے خلاف 20 ایف آئی آر درج کی ہیں۔ اس کے علاوہ پریونشن آف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اب تک 3 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جس میں ایک منشیات فروش بھی شامل ہے جو اس سے قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ متعدد افراد کو منشیات فروخت کرنے کی لت میں ملوث ہونے کی وجہ سے حفاظتی تحویل میں بھی لیا گیا ہے۔ ڈوڈا پولیس نے عام لوگوں سے تعاون طلب کیا ہے اور منشیات کے اسمگلروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس سے بلیک ٹریڈنگ اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں سے باز رہیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت قانون کی کارروائی کی جائے گی، جس میں پی ایس اے کے تحت حراست اور عادی افراد کی املاک کو ضبط کرنا شامل ہے۔ سجاد احمد بٹ ہے، بیولی ڈوڈا کا رہنے والا ہے، اور دوسرا مزمل رفیق ہے جو کہ سلطان پورہ بھدرواہ ٹاؤن کا رہنے والا ہے۔ ان کے خلاف ریپیٹڈ ایف آئی آر تھی، ان کے پہلے ایک ایف آئی آر لگی ان کے خلاف ایک اور اس کے بعد پھر انہوں نے آفینس ریپیٹ کیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر لگی۔ ان کو ہم نے پورا ایک ڈوزیر پریپیئر کر کے، جو ان کا ڈوزیر ہے وہ ڈویژنل کمشنر صاحب جموں کو ہم نے دیا، انہوں نے ہمیں کل جو ہے ایک پی ایس اے کا وارنٹ دیے ہیں ان کے خلاف، اور وہ ہم نے ایگزیکیوٹ کر کے ان کو بھدرواہ جیل میں لاد کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو نشہ مکت اور جو ڈوڈا کو ڈرگ سے فری کرنا ہے، اس میں 3-4 جو ہمارے پیرامیٹر اس پہ ہم کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اویئرنیس کا پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرتے ہیں، پھر کاؤنسلنگ کا کرتے ہیں، اور پھر ہمیں جن پہ شک ہے کہ یہ ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ہمیں وہ نہیں ملتا ہے ان سے ریکوری، تو ان کے خلاف پریونٹیو ایکشن لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پونیٹیو ایکشن جس میں ریکوری کر کے ہم ایف آئی آر دیتے ہیں، اور جو ریپیٹڈ آفینس کرتا ہے اس کے خلاف پی ایس اے لگتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے کوئی 8 لوگوں کو ڈسٹرکٹ ڈوڈا کو جو رہنے والے ہیں ان کو ہم نے پی ایس اے لگا کے جیل میں بند کیا ہے۔ جی ہاں، ان کے دونوں کے خلاف ایف آئی آر لگی ہیں، ریپیٹڈ آفینس 2 بار ایف آئی آر لگی ہیں، اور پھر بھی جو ہماری ان پٹ ہے اس کے مطابق یہ پھر بھی لوگ۔ آج ضلع ہیڈ کوارٹر پر کاستی گڑھ کے ڈی ڈی سی ممبر کے ہمراہ کاستی گڑھ بلاک کے عوام کاستی گڑھ شامٹی روڈ پر سڑک کا کام روکے جانے کی وجہ سے دھرنے پر بیٹھے تھے اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اس روڈ پر جلد سے جلد کام شروع کیا جائے تاکہ عوام کو ہو رہی پریشانیوں کا ازالہ ہو سکے۔ اسی دوران ڈی ڈی سی ممبر کاستی گڑھ سے اس بارے میں ملاقات کرنے کے لیے اے ڈی ڈی سی کے دفتر کے اندر گئیں تو اے ڈی ڈی سی نے ممبر کو ڈی ڈی سی بلاک کے ممبر کو دفتر سے باہر نکال دیا اور برا بھلا کہا، جس سے ناراض ہو کر بلاک کاستی گڑھ کے عوام نے ضلع انتظامیہ کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ اسی دوران پولیس کے عملے نے ڈی سی آفس کے گیٹ پر گھیرا بندی کی اور مظاہرین کو سمجھانے لگے، لیکن مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جب تک اے ڈی ڈی سی آ کر معافی نہیں مانگتے تب تک مظاہرہ ختم نہیں ہوگا۔ بالآخر
ADDC ने आकर मुआफ़ी मांग ली, तब जाकर मुजाहिरा ख़त्म हुआ। ये किस्म का धन्यवाद ही करती हूँ कि इन्होंने अब माफ़ी मांगी, मगर मुझे दुख ये है कि ये मुझे पहले अंदर क्यों बुला रहे थे। अंदर में जाने वाली नहीं थी, मुझे चाहे पूरी रात भी लगती थी, आज मैंने यहीं पे रहना था। मैं ये यहाँ से ये बोलती हूँ कि कोई बात अगर आए भी अच्छी बात है, ये भी एक मैसेज जाएगा। मैं इनको बार बार बोल रही हूँ कि कोई मैं काश्तीगढ़ DDC में एक अपनी तरफ से एक बात रख रही हूँ कि दोबारा ऐसे आइंदा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होना किसी के साथ में नहीं, चाहे मेरे सरपंच हो, मेंबर हो। अगर मुझे दुख ये हुआ, अभी ये हमारे ये ADDC साहब प्राण सिंह क्या बोलते हैं, ये अभी मुझे बोल रहे हैं, मैंने बोला नहीं। देखो शर्म की बात है, ये किस मुंह से मुझे बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं बोला। के साथ साथ जितनी भी हम लोकल आवाम में हम सब यहाँ आए थे, इशू कुछ था रोड के रिगार्डिंग, एक इशू था कि हम चाहते थे कि वो रिजॉल्व हो, क्योंकि उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का काफ़ी मतलब कुछ इंपॉर्टेंस थी, इसी वजह से यहाँ आए थे। लेकिन क्या है कि सबसे पहले गुमराह किया था, अच्छा नहीं लगा, या कोई फ़ोन आए होंगे तो एकदम से क्या होता है कि वो उनको बोलते हैं कि आप ऑफिस से बाहर चले जाएं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मतलब और इंपॉर्टेंट काम, मतलब एक शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े अच्छे ओहदे पे बैठे ऑफिसर्स को कि आप ऐसे बोलो। ये बात तो एक नॉर्मल इंसान से बात नहीं कर सकते, उसके बाद फिर लेडी से बात नहीं कर सकते, उसके बाद फिर एक इलेक्टेड बंदे से आप ये बात कर रहे हो, मतलब। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के टहा पब्लिक हेल्थ सेंटर में आज महकमे सेहत ने एक खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसमें ज़िला अस्पताल पुलवामा के डॉक्टरों के साथ साथ मकामी लोगों ने मिलकर 23 पॉइंट्स के करीब खून जमा किया, जिनको बाद में ज़िला अस्पताल पुलवामा के ब्लड बैंक के सुपुर्द किया गया ताकि ये खून ज़रूरतमंदों के काम आ सके। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर इरफान गनई ने आवाम से अपील की कि वो इनके खून के अतिया कैंपों में शिरकत करें ताकि ये किसी की जान बचाने में काम आ सके। बाबा जो है उसके कैंपेन के तहत कर रहे हैं। ये आयुष्मान बाबा जो है, ये एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, ये 120 डेज़ को रन होगी पूरी कंट्री में और 31 दिसंबर को ये ख़त्म होगा। इसके मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है ग्राम सभा हमें हर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में करनी है, दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप्स करने हैं, हर सैटरडे को हमें एक हेल्थ मेला करना है, और फोर्थ है कि हमें जो हमारी RVS के टीम्स हैं वो जो जैसे वो सर्वे करती हैं 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज पे, उनको वो अपनी सर्वे कंटिन्यू करनी है। जैसे आज डोडा में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से लड़कों की कुश्ती मुकाबले का आगाज़ किया गया, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर से आए हुए तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ज़िला स्पोर्ट्स ऑफिसर जाफ़र हैदर शेख ने रिबन काट कर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस नौइयत का ये पहला मुकाबला है जो कि चिनाब वैली में हो रहा है। कुश्ती का मुकाबला आज तक कभी भी चिनाब वैली में नहीं हुआ था और आज पहली बार इस मुकाबले के इनेकाद करने की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर से आए हुए सभी खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। इस मुकाबले में कुल 10 ज़िले के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले 3 रोज़ तक जारी रहेंगे। मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, जो सभी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक जो यूटी लेवल टूर्नामेंट जो हो रही है, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो मैचेस होते हैं, उनके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होकर वो फिर आगे यूटी लेवल यहाँ पे यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स यूटी JNK की तरफ से हो रहा है। चिनाब वैली में फर्स्ट टाइम फ्री रेसलिंग जो मैटिंग की हो रही है, पहली बार हो रही है। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि डिपार्टमेंट ने हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 15वीं सालाना गंगबल यात्रा ज़िला गांदरबल के नारनांग बेस कैंप से शुरू हुई। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने, जो SSP गांदरबल के हमरा थे, सुबह सवेरे बेस कैंप से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। गंगबल झील की तरफ जाने से पहले बेस कैंप में खुसूसी पूजा का इनेकाद किया गया, जो ख़ानदान के आबा व अजदाद और फ़ौज शुदगान को रस्मी पूजा करने के लिए मशहूर है। मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में मुकीम कश्मीरी पंडित सालाना यात्रा में शिरकत के लिए नारानाग पहुँचे, जहाँ यात्रियों की हिफाजत के लिए तमाम तर हिफाजती इंतज़ामात किए गए थे। मुक़द्दस पूजा कल गंगबल झील के किनारे पर की जाएगी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि यात्रा 2 सदियों के बाद ऑल पार्टी माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोशिशों से सन 2009 में बहाल हुई और बाद में हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट कायम किया गया, जो हर साल यात्रा का इनेकाद करता है। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के लिए रिहाइश, तिब्बी और सिक्योरिटी के तमाम तर इंतज़ामात कर लिए हैं। इस मौके पर SSP गांदरबल निखिल बोरकर, SDM
गंगन जावेद, अहमद राथार, तहसीलदार कंगन और दीगर मुतालिका अफराद मौजूद थे। और कंटिन्यूसली 13 साल से यात्रा हो रही है। इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है और हम सभी उन लोगों का धन्यवाद करते हैं, चाहे वो 34 आसाम राइफल्स हो, CRPF हो, पुलिस हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहा है, जो अरेंजमेंट्स में है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में है, वो DC गांदरबल का रहा है, SSP गांदरबल का रहा है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है पर्टिकुलरली लेफ्टिनेंट है। अगर आप देखेंगे इसमें ब्रह्म सर भी है, यम सर भी है, कृष्ण सर भी है, विष्णु सर भी हैं, और ये पूरा ही प्लाटो एंटायर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जो बहुत सारे लोगों को अक्रॉस कंट्री में। मदरसा इस्लामिया अरबिया तालीमुद्दीन गौसाबाद चंकीपुरा सोपोर में सालाना जलसे अज़ीमुश्शान दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया। 16 तालिब इल्मों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ करके अपने दिल के अंदर समाया है। इस सिलसिले में के अंदर तालिब इल्म के एजाज़ में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया और उनकी हौसला अफजाई करने के साथ साथ इनको सनद से भी नवाजा गया। इस दौरान 16 बच्चों, जिनमें 7 बच्चियां भी कुरान पाक को हिफ्ज़ करके अपने वालिदैन और अपने इलाके का नाम रोशन की हैं। इस दिन में इदारे हाजा के मोहतमिम कादरी नसीर अहमद मीर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे और मेरे असातिज़ा साहिबान आज बहुत ही खुश हैं कि आज हमारे इदारे से 16 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मशहूर मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रहमतुल्लाह कासमी साहब थे और उन्होंने इस जलसे से खिताब भी किया और कुरान की आयत पर रोशनी डाली। अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस दिन को देखना चाहते हैं। आज अल्लाह तबारक ताला ने हमें ये मौका और ये दिन दिखाया। हमारे सब साथी, हमारे सब असातिज़ा सब इंशाल्लाह खुश है कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ ले आए। खुसूसन हमारे कश्मीर के बरकत गुजरात, बरकत कश्मीर जिनसे ताबीर किया जाता है, हज़रत अलहाज मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब दामर बरकत आलिया सदर राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया दारुल देवबंद शाख जम्मू कश्मीर, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई फरमाई और मस्जिद शरीफ की संग बुनियाद भी डाली। इससे हम बहुत खुश हैं और इलाका भी खुश है। अल्लाह इस खुशी को बरकरार रखे और हमेशा के लिए इस मदरसे को आफियत और शुरू से बचाए और इसको क़यामत के सुबह तक जारी और सारी रखे। अनंतनाग में नाबीना अफराद के दरमियान क्रिकेट मैच का मुकाबला हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर तले महकमे सोशल वेलफेयर, महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इश्तराक से जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में ये क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें नाबीना अफराद की कई टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ अफराद के साथ साथ कॉलेज इंतज़ामिया, महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर के अहदेदारों ने अहद किया कि हम नशे से दूर रहेंगे और नौजवानों को भी ताकीद करेंगे कि वो भी इस बुरी लत से दूर रहने के साथ साथ मुख्तलिफ खेल कूद की सरगर्मियों में अपनी दिलचस्पी दिखाकर नशे का खात्मा करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि अगर जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ नौजवान खेल कूद की सरगर्मियों में दिलचस्पी ले रहे हैं तो ये उन नौजवानी के लिए मशअल राह है जो तंदुरुस्त होने के बावजूद मनशियात की बुरी लत में मुब्तला हुए हैं। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने असातिज़ा को तरबियत दी है कि वो इन नौजवानों से कैसे पेश आएँ और किस तरह से उनकी देखभाल करनी होगी और किस तरह से नौजवानों को नशे से दूर रखा जाए ताकि हमारी नई नस्ल इस गलत काम से महफूज रहे। वहीं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का कहना है कि नशा मुक्त भारत में हमारा ये भी एक प्रोग्राम है कि हम नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि आज का मैच उसी चीज़ की अक्कासी करता है। अगर जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ नौजवान खेल कूद जैसी सरगर्मी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो उन नौजवानों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है जो गलत काम में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ अफराद उन तंदुरुस्त नौजवानों के लिए मशाल राह हैं जो तंदुरुस्त होने के बावजूद मनशियात की इस बुरी लत में मुब्तला है। ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपको इस लत से दूर रहना है। प्लस जो हमारे कुछ टीचर्स हैं उनको हमने ट्रेन करवाया है फॉर इम्पा जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि रहेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान में एक हमारा ये प्रोग्राम भी आता है कि हम सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें
उसी सिलसिले की आज एक कड़ी है कि यहाँ पर एक सपोर्ट्स इवेंट हम कर रहे हैं NMA के तहत। जो फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सनस हैं उनका एक सपोर्ट्स इवेंट हम 3 दिन यहाँ करा रहे हैं, ताकि एक मैसेज जाए जो हमारा नॉर्मल यूथ है, जो हमारा यूथ ड्रग्स की तरफ आ रहा है या ड्रग्स की तरफ रागिब हो रहा है, उनके लिए एक मैसेज आए कि जो हमारी एनर्जी है उसको हम सपोर्ट्स एक्टिविटी में पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। मीरवाइज उमर फारूक 4 साल बाद नजरबंदी से रिहा। श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत की, मुसल्लियों से भरी पड़ी मस्जिद में जज्बाती मनाजिर। पार्लियामेंट में बीजेपी लीडर रमेश बधूरी के नाजेबा बयान पर जम्मू कश्मीर के लीडरों का रद्द अमल। बीजेपी लीडर के बयान की सख्त मजम्मत। डोडा पुलिस ने 2 बदनाम जमाना मनशियात फरोशों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। पब्लिक सेफ्टी एंड PS एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। और डोडा जिला हेडक्वार्टर पर कास्तीगढ़ की DDC मेंबर के हमरा कास्तीगढ़ ब्लॉक के अवाम ने दिया धरना। रोड का काम जल्द शुरू करने का मुतालबा। मीरवाइज उमर फारूक 4 साल बाद नजरबंदी से रिहा। श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत की, मुसल्लियों से भरी पड़ी मस्जिद में जज्बाती मनाजिर। पार्लियामेंट में बीजेपी लीडर रमेश बधूरी के नाजेबा बयान पर जम्मू कश्मीर के लीडरों का रद्द अमल। बीजेपी लीडर के बयान की सख्त मजम्मत। डोडा पुलिस ने 2 बदनाम जमाना मनशियात फरोशों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। पब्लिक सेफ्टी एंड PS एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। और डोडा जिला हेडक्वार्टर पर कास्तीगढ़ की DDC मेंबर के हमरा कास्तीगढ़ ब्लॉक के अवाम ने दिया धरना। रोड का काम जल्द शुरू करने का मुतालबा। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए।